Good morning, dear children. Today we are going to continue with the chapter 7 Post Independence India, class 9 Social Studies. The second part over here. Last class we have learnt about the article for independence India was passed by the British Parliament in the year 1947, and there were two important things that had to be kept in mind, that was framing the constitution and to put an end to the sovereignty of British Empire on the princely states. So that was very important to combine all the 562 princely states that were present in India and make them united into one. But after gaining the independence, Maharaja of Bhavnagar, Krishna Kumar Singh, was the first king who took the responsibility of starting a common government with the Indian government on 15 January 1948. And it was all the efforts and hard work of Sardar Patel that he appealed to all the kings and nawabs of the princely states, and they should voluntarily forsake their respective states in the interest of their subjects. और उनके साथ होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मिस्टर वीपी मेनन ने भी ड्राफ्टिंग कमेटी में and the drafting committee was set up in which it was decided for the attachment bond and the status quo agreement. Now how all the 559 princely states got merged under the guidance and hard work of Sardar Patel, but there were three princely states which were still not wanting to join the Indian governance. That was Hyderabad, Junagadh and Kashmir. But over here also Sardar Patel, with all his efforts, he has done a great job to get these three princely states also to be combined. So let us go through with the Hyderabad. Nizam of Hyderabad with its states from southern part of India declared its independence on 15th of August, and as per its geographical location it was bound to join India. अब अगर आप इंडिया का मैप देखें तो हैदराबाद बहुत ही सदर्न मोस्ट पार्ट में आता है. अब अगर हैदराबाद पाकिस्तान में ज्वाइन होता है या फिर इंडिया की सिटीज़नशिप एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या होता है, तो उसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो ऐसी जगह पर है कि जहाँ से उसे कंपल्सरीली इंडिया में ज्वाइन होना ही पड़ा. But the fact was brought to their notice that Hyderabad won't be able to remain as an independent state as it is surrounded by the Indian territory. क्यों? क्योंकि हैदराबाद के चारों तरफ के जो दूसरे स्टेट्स हैं वो सारे के सारे इंडियन टेरिटरी में हैं, तो एक हैदराबाद ही अलग कैसे रह सकता है. So the Nizam clarified the matter by saying that in case the country is divided, then owing to geographical reasons they would not be able to join Pakistan and they would not be able to join India owing to ideological reasons. और वहाँ के जो निज़ाम थे उन्होंने क्या कहा कि क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड होगा और पाकिस्तान से वो बहुत दूर है, इंडियन टेरिटरी के अंदर है, जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसकी वजह से वो पाकिस्तान में ज्वाइन नहीं हो सकता. लेकिन जो उनकी आइडियोलॉजी है और इंडिया की आइडियोलॉजी है वो भी टोटली अलग है, हमारी विचारधारणा अलग है, इसलिए हम इंडिया में भी शामिल नहीं हो सकते. अंडर सच सर्कमस्टांसेस दे वुड प्रेफर टू रिमेन इंडिपेंडेंट. तो ऐसी हालात में हैदराबाद के निज़ाम को लगा कि वो अपना ही एक अलग देश बना लेंगे और इंडिपेंडेंट सरकार रखेंगे. Negotiations began with the Nizam. Sardar Patel bluntly stated to the negotiator of the Nizam that people of Hyderabad are agreed to be with the Union of India. Meanwhile, the Nizam officers started committing atrocities on the people of Hyderabad. Ultimately, Hyderabad was merged with the Union of India by using police force on 18 September 1948. तो निज़ाम को कन्विंस करने में सरदार पटेल को बहुत सारा जोर आजमाइश भी करनी पड़ी और उनके लाख मना करने के बावजूद भी सरदार पटेल के जो टीम मेंबर्स थे उन लोगों ने वहाँ के रहने वाले जो सिटीजन्स थे उन सब से ये प्रॉमिस ले लिया कि वो लोग इंडिया में रहना चाहते हैं, और इस वजह से
18 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भी इंडिया में शामिल होना पड़ा। सरदार पटेल अश्योर्ड द निज़ाम टू प्रोटेक्ट ऑल द इंटरेस्ट। अब सरदार पटेल ने निज़ाम को ये प्रॉमिस किया कि उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उनके जो भी आइडियोलॉजी है, उनका जो भी रिलीजन है, उसमें वो लोग इंडिया के रूल्स लागू नहीं करेंगे और उन्हें कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। So Kannaiya Lal Munshi played a very crucial role in the entire episode. After the reforming of states, the state of Hyderabad was later included in आंध्र प्रदेश। तो आज का जो आंध्र प्रदेश है उसमें हैदराबाद को ज्वाइन कर दिया गया। Now we come to Junagadh. On the day of independence, the Nawab of Junagadh wrote an instrument of accession to join Pakistan. अब जूनागढ़ में जो नवाब थे उन्होंने एक लेटर बनाकर भेजा कि वो पाकिस्तान में ज्वाइन होना चाहते हैं और पाकिस्तान इन टर्न गिव देम कंसेंट। और पाकिस्तान ने भी बहुत ही खुशी खुशी लेटर लिख दिया कि हाँ तुम आ जाओ, जूनागढ़ में ज्वाइन हो जाओ। Sardar Patel decided to take countermeasures against this. People of Junagadh living in Mumbai established Arzi Hukumat in Mumbai. During this time, Sheikhs of Mangrol and Manavadar declared their wish to join the Union of India. अब ये सब जब हो रहा था तब सरदार पटेल ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात की, बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग्स की और जूनागढ़ के रहने वाले जो लोग मुंबई में रह रहे थे उन्होंने एक अर्जी हुकूमत शुरू की। दैट इज़ सिग्नेचर, सभी का साइन, लेटर लिखकर साइन करना कि हम सब इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते। और जो मांगरोल और मानवदार में शेख, उन लोगों ने भी यह इच्छा जाहिर की कि वो यूनियन ऑफ इंडिया में रहना चाहते हैं। इंडियन सोल्जर्स एंड नेवी हु वर पोजीशन टू प्रोटेक्ट मानवदर एंड मांगरोल बिसीज द जूनागढ़ स्टेट। तो जो इंडियन सोल्जर्स और नेवी मानवदर और मांगरोल में रहने वाले लोगों की प्रोटेक्शन के लिए खड़ी की गई थी, उन्होंने जूनागढ़ स्टेट पर कब्जा कर लिया। द नवाब ऑफ जूनागढ़ फ्लेड टू पाकिस्तान। On 9th of November 1947, referendum of the people of Junagadh was taken. तो नवाब पाकिस्तान भाग गए। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगा कि अब मैं यहाँ रहूँगा तो यहाँ की जो सिटीज़न है वो भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर 9th of November 1947 को जूनागढ़ के सारे लोगों से एक सिग्नेचर, एक परमिशन ली गई। Thus, Junagadh's merger with the Union of India was made possible owing to Sardar Patel's guts, tremendous will of people of Junagadh. अब बाकी बचा कश्मीर। तो कश्मीर को भी यही बहुत बड़ी समस्या थी कि कश्मीर को हम किस तरह से पाकिस्तान में जाने से रोकें। उनके लिए जो वहाँ के राजा थे, राजा हरी सिंह ऑफ कश्मीर वॉज इनडेसिसिव। वो ये तय ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें किसके साथ जाना है, इंडिया के साथ रहना है कि पाकिस्तान के साथ जाना है। तो मीनवाइल पाकिस्तान अटैक्ड कश्मीर। अब जब राजा हरी सिंह यह विचार में ही पड़े थे, अभी तक ये सोच रहे थे कि मैं किसके साथ रहूं, तब तक क्या हुआ, पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया। The government of India insisted that Raja Hari Singh should first sign the instrument of accession and then the Indian army could be sent. तो तब उन्होंने, राजा हरी सिंह ने इंडिया की गवर्नमेंट से हेल्प मांगी। अब इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या कहा कि पहले आप इंडिया के साथ शामिल हो जाओ, पहले आप इंडिया की गवर्नेंस एक्सेप्ट कर लो, तब हम अपनी आर्मी को भेजेंगे। So one of the clauses in instrument of accession was that after restoration of normal situation in Kashmir, plebiscite would be held for permanent merger with India. तो यह डिसाइड किया गया कि एक बार जब कश्मीर को वापस हम पाकिस्तान की अटैक से बचा लेंगे, तब कश्मीर में रहने वाले लोगों के साथ हम मिलकर मीटिंग करेंगे और फिर हम इंडिया में उसे शामिल कर लेंगे। बट पाकिस्तान हैड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड 1/3 ऑफ कश्मीर बाय दैट टाइम। लेकिन इन सारी चीज़ों में इतनी देर हो गई, राजा हरी सिंह जो है वो सही समय पर निर्णय नहीं ले पाए। इसकी वजह से क्या हुआ कि कश्मीर का 1/3 पोर्शन
पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया। जो आज हम लोग न्यूज़ में भी सुनते हैं ना कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK, वो भी इंडिया का ही पार्ट है, वो पाकिस्तान का नहीं है। लेकिन क्योंकि उस समय पर कुछ निर्णय सही समय पर नहीं लिए गए, जिसकी वजह से यह अभी आज हमारा ये लॉस हो गया है। But the rest of Kashmir was saved. India has registered a complaint against Pakistan in the Security Council of the United Nations. The Security Council suggested for ceasefire. Even today, Kashmir issues is a contentious issue in the relations between India and Pakistan, and in this way, towards the end of 1948, political unity of India was established by various historical and non-violent moments. तो कश्मीर का जो इशू है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। राजा हरी सिंह क्योंकि वो इंडिसिसिव रहे, तब तक पाकिस्तान अटैक कर चुका था, और फिर राजा हरी सिंह ने जब रिक्वेस्ट की कि अब इंडिया की आर्मी हमें बचाए, तब इंडिया ने थोड़ी सी उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कश्मीर को बचाने में हेल्प करी। लेकिन तब तक क्या हुआ कि 1/3 पोर्शन ऑफ कश्मीर वो पाकिस्तान में एंटर हो चुका था, ऑक्यूपाई हो चुका था बाय द पाकिस्तानी आर्मी। नाउ आफ्टर दिस वी हैव सम कॉलोनीज, जो जब आपको पता ही है कि ब्रिटिश रूल आया, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे दूसरी कंट्री के लोगों ने भी आकर इंडिया पे अटैक किया था। इंडिया पे आकर अपना बिजनेस जमाने के चक्कर में वो इंडिया में ही आकर बस गए, रह गए। उनमें से फ्रेंच और पोर्टुगीज़ भी हैं। तो आज जो गोवा, दमन, दीव, ये सारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वहाँ पर पोर्टुगीज़ और फ्रेंच रूल पहले था। अब जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को इंडिया में शामिल करने के बाद जो एक दूसरी चुनौती थी वो थी फ्रेंच और पोर्टुगीज़ में रहने वाली कॉलोनीज़ जो थी, उनको कैसे इंडिया में शामिल किया जाए। India emerged as an independent and sovereign state on January 26, 1950, but certain colonies of the French and the Portuguese rule were still under their control. So, the Union of India appealed the French controlled Pondicherry and Portuguese controlled Diu, Daman and Goa to merge with India. तो फ्रेंच वो पौंडीचेरी में अपना डेरा जमाए हुए थे, और पोर्टुगीज़ वो दीव, दमन और गोवा को अपने अंडर कंट्रोल में रखा था। लेकिन इंडिया की ये कोशिश थी कि पोर्टुगीज़ और फ्रेंच दोनों ही इंडिया छोड़कर चले जाएं, ताकि हम पौंडीचेरी, दीव, दमन और गोवा को भी इंडिया में शामिल कर सकें। Now people of these colonies wanted desperately join the Union of India. अब यहाँ रहने वाले जो सिटीज़न थे, उनकी यह इच्छा थी कि वो इंडिया में ही ज्वाइन हो। वो फ्रेंच और पोर्टुगीज़ के साथ ज्वाइन नहीं रहना चाहते थे, जिसकी वजह से उनकी इच्छा के कारण एंड सरदार पटेल की हार्डवर्क के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया कि आज पौंडीचेरी, दीव, दमन और गोवा भी इंडिया में शामिल हो चुके हैं। दे स्टार्टेड विगरस मूवमेंट फॉर द पर्पस। तो वहाँ के रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत करके आपस में यूनिटी करी कि हमें इंडिया में ही जाना है, हमें फ्रेंच और पोर्टुगीज़ गवर्नमेंट नहीं चाहिए। They started vigorous movement for the purpose. The French government realized people's rage and was compelled to start negotiation with the Indian government. अब फ्रेंच गवर्नमेंट जो है उन्हें समझ में आ गई कि ये अभी हमारा यहाँ रहना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्होंने इंडिया के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करना शुरू कर दिया, बातचीत करनी शुरू कर दी कि हमारी कुछ शर्तें हैं और फिर हम ये ट्रीटी साइन करेंगे। And then Diu, Daman and Goa on 15th August 1947, political leaders and satyagrahis entered Diu, Daman and Goa, and in free Goa agitation thousands of volunteers died. और भारत छोड़ो आंदोलन तो था ही, लेकिन अब हिंद छोड़ो, यह फ्रेंच गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन शुरू किया लोगों ने, और दीव, दमन और गोवा में फ्री गोवा एजिटेशन स्टार्ट हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई, क्योंकि बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसकी वजह से ही आज हम लोग इन तीनों
प्रिंसली स्टेट्स को भी अपने अंदर शामिल कर सके। As attempts such as negotiation, persuasion and satyagrahas proved to be unsuccessful, the Indian government decided to begin Operation Vijay to liberate Goa. तो गोवा को लिबरेट करने के लिए ऑपरेशन विजय नाम का एक जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया, जिसमें द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस एंड पोर्टुगीज वर compulsorily forced to leave our country and go away. The Indian government started negotiation for peaceful solution of the Pondicherry issue with the French government, but people were not satisfied with that. In Yanam, People's Liberation Army had taken over the administration in their hands on June 13, 1954. The French government realized people's rage and was compelled to start negotiation with the Indian government. All the French colonies, that is Karaikal, Mahe, Yanam, Chandranagar, were handed over to India for further reconstruction. तो अक्टूबर 31, 1954 में जो फ्रेंच कॉलोनीज़ थी कराईकल, माहे, यनम, चंद्रनगर, ये सब इंडिया को हैंड ओवर कर दी गई एंड फर्दर दे वर टेकन अंडर द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, और इनको पौंडीचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उसके अंडर ले लिया गया. विद द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन स्टेट्स, पौंडीचेरी हैड कराईकल इन तमिलनाडु, माही इन केरला, यनम इन आंध्र प्रदेश एंड चंद्रनगर इन वेस्ट बंगाल. तो जो इंडिया के स्टेट्स हैं उनमें ये कॉलोनीज़ भी जॉइन मर्ज की गई तब, लेकिन आज भी पौंडीचेरी का एडमिनिस्ट्रेशन इन कॉलोनीज़ पर चलता है. ये कॉलोनीज़ पौंडीचेरी में नहीं है, लेकिन इनके ऊपर भी फ्रांस की गवर्नमेंट का रूल था. इसलिए फ्रांस की गवर्नमेंट ने ये नेगोशिएशन किया कि ये जो कॉलोनीज़ हैं ये भी पौंडीचेरी के रूल के अंदर रहेंगी. तो पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके जो रूल्स हैं वो इन कॉलोनीज़ के ऊपर भी सेम लागू पड़ते हैं. दैट इज़ कराईकल इन तमिलनाडु, माहे इन केरला, यनम इन आंध्र प्रदेश एंड चंद्रनगर इन वेस्ट बंगाल. पौंडीचेरी इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ ऑल दीज territories. Okay, now how Diu, Daman and Goa got merged. On 15th of August 1947, the political leaders and satyagrahis entered Diu, Daman and Goa, and in free Goa agitation thousands of volunteers died as attempts such as negotiation, persuasion and satyagrahas proved to be unsuccessful. The Indian government decided to begin Operation Vijay to liberate Goa. तो ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है कि which is the operation which was conducted by the Indian government to liberate Goa. So you have to write Operation Vijay. On the midnight of December 19th, 1961, Portuguese Governor De Silva surrendered to Indian government. तो 19 दिसंबर 1961 की मध्य रात्रि को पोर्टुगीज़ का जो गवर्नर थे डी सिल्वा, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिया. The Indian Army captured Goa, Daman and Diu and hoisted the Indian flag there. तो इंडियन आर्मी ने गोवा, दमन और दीव पर अपना कब्जा किया और इंडिया का फ्लैग वहाँ पर लहराने लगा. Thus, the last remains of the Western rule disappeared from India on 12th March 1962. तो 1962 12th मार्च को इंडिया में से जो लास्ट फॉरेन रूल था वो भी ख़त्म हो गया. गोवा, दादर नागर हवेली, दमन and Diu were merged with the Union of India. These states were known as the Union Territories. On 30th of May 1987, Daman and Diu were separated from Goa. तो ये जो जितनी भी डेट्स आ रही हैं इस चैप्टर में वो आपके 1 मार्क क्वेश्चन में ज़रूर पूछी जा सकती हैं, इसलिए इनको खास याद रखने की कोशिश करना है. So on 30th of May 1987, Daman and Diu were separated from Goa. Thereafter, Silvassa was made the capital of Dadar Nagar Haveli. Daman was made the capital of Diu, and Daman and Panji was made the capital of Goa. So if you are asked the questions, you can get this question in your match the following, that Silvassa is the capital of Nagar Haveli, Daman is the capital of and Panji is the capital of. तो ये आपका fill in the blanks में भी आ सकता है, match the following में भी आ सकता है.
इवन इसके पहले जो था कराईकल किस स्टेट में है, देन माहे इज इन विच स्टेट, यानम इज इन विच स्टेट. ऑल दीज कैन बी योर 1 mark questions in your match the following or fill in the blanks or true or false. So please prepare, and we will continue in the next video very soon. Please keep on reading, and your textbook is your very important book which has to be read, and each and every chapter has to be read very carefully. Then only you will be able to understand the different situations that are explained in your chapters. Thank you for listening. Take care, keep safe, and take care of your health, because school is waiting for you. We will meet soon.